Students, in today's lecture, we are going to understand what is pipelining, the impact of pipelining, execution stage, and throughput. So, before starting this, we would like to understand how to improve the performance of CPU. हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम ये देखेंगे, राइट? So, first, to improve the hardware by executing, how can we improve the performance of CPU? We have 2 points via which you can actually improve the performance of CPU. What are those 2 points? First is to improve the hardware by introducing a fast circuit. First option that we are having with us in order to increase the performance of CPU is that we introduce such type of hardware into the circuits, right? हम ऐसे कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए. एंड सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव फॉर enhancing the performance of CPU की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि अरेंज द हार्डवेयर डिवाइसेस सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम. दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ CPU इज़ दैट कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस को या हार्डवेयर को हम इस तरह से अरेंज करें ताकि एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन हम एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकें, राइट? सो बेसिकली वी आर हैविंग टू ways by which we can actually enhance or improve the performance of central processing units. What are those 2 points? First, either we can improve the hardware by introducing a faster circuit, right? या तो हम हार्डवेयर इंट्रोड्यूस करके फास्टर सर्किट्स बना सकते हैं या फिर हम हार्डवेयर डिवाइसेस को इस तरह से अरेंज करें कि हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकें, right? Since there is no limit of speed of hardware and cost of the fast circuit is quite high. अब यदि हम first option, if we go for first option, that is to improve the hardware by introducing faster circuit, हम नए hardware introduce करेंगे तो obviously the cost is going to be the impact is going to be on the cost. Obviously हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. So and speed will also be limited, right? So in order to overcome this drawback of the first point, what we are going to do, we are going to opt for the second point, that is arrange the hardware. We are going to arrange the hardware in such a way that simultaneously we can perform more than one operation. Simultaneously means एक साथ एक से ज़्यादा operations को perform करना. Now the concept of pipelines comes into the existence. What is pipeline, right? ये pipelining है क्या? Pipelining is nothing but it is a process of arranging hardware element of CPU in such a way that the overall performance is increased, right? तो pipelining कोई कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को, जितने भी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के हार्डवेयर डिवाइसेस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाए, राइट? सो वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली arranging the hardware on the CPU in such a way that the overall performance of the CPU get increased, right? And second point in pipelining is that सबसे पहले तो हमने हार्डवेयर को अरेंज कर दिया इस तरह से कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए. सेकेंड चीज़ जो हम करते हैं, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर. पाइपलाइन प्रोसेसर में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने हार्डवेयर को इस तरह से इंक्रीज़ कर दिया, लगा दिया CPU में कि एक से उसकी जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ हो जाए. उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस का कैन टेक प्लेस इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर. साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन मतलब एक साथ एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट हो सकते हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट in detail, I would like to give you an example, a real life example. I think the things are going to be more clear if we go through the real life, example. So let us consider a bottle, bottle packaging plant. We'll consider a bottle packaging plant. And what does the bottle packaging plants consist? Let us consider it consists of 3 stages. What happens in these 3 stages? We are going to see that, right? First, insert the bottle. भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एक बॉटल पैकेजिंग प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड द पाइपलाइन इफेक्ट, ताकि आप उसे और बेहतर तरीके से समझ सकें, राइट? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बॉटल जो है पैकेजिंग का काम 3 स्टेज में होता है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ बॉटल, हम बॉटल को इंसर्ट करेंगे. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
फिलिंग द बॉटल इन द बॉटल. सेकेंड स्टेप दैट कैन बी, भाई बॉटल ली है तो उसमें पानी डालेंगे. बॉटल पैकेजिंग प्लांट में क्या होगा, बॉटल ली जाएगी, उसमें पानी दिया जाएगा, उसे सील किया जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द 3 स्टेज. आई एम गिविंग इन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पाइप लाइनिंग सो द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. आपके लिए पाइप लाइनिंग समझना आसान हो जाएगा. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, फर्स्ट वी विल इंसर्ट द बॉटल, second we'll fill the bottle, and third we'll seal the bottle. So let us consider these 3 stages, that is stage 1 and stage 2 and stage 3 respectively. तो ये तीनों हम stages देख रहे हैं. Let leave the stage 1 take 1 minute. हम ये assume कर लेते हैं, let us presume that the first stage, that is, what was the first stage? Inserting the bottle. So let's assume that the first stage, that is inserting the water, take 1 minute to complete its operation. इस ऑपरेशन को, बॉटल को इंसर्ट होने के ऑपरेशन को 1 मिनट लगता है. हम एक अज्यूम कर लेते हैं. नाउ इन अ पाइपलाइन ऑपरेशन अ बॉटल इज फर्स्ट इंसर्टेड इन द प्लांट. आफ्टर 1 मिनट इट इज़ मूव टू द स्टेज सेकेंड वेयर द वाटर इज़ फिल्ड, एंड नाउ स्टेज 1 इज़ नथिंग इज़ हैपनिंग. अभी पाइपलाइनिंग ऑपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू insert a bottle into the plant, and after 1 minute, since we have taken the 1 minute to complete the operations, so after 1 minute what is happening, it is moved to the stage 2. And what was the stage 2? Filling the water. So after inserting the water, stage 2 comes, that is filling the water. And now in stage 1, up when stage 1 bottle is being kept, right? Second stage mein what is happening, after then the 1 minute time is given to operation to finish, and after that the second stage started taking place. अब सेकेंड स्टेज में what is happening, the water is being filled. लेकिन when the working is going on this second stage, what is happening at the first stage? फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है? Are you getting my point? भाई फर्स्ट स्टेज अब empty हो गया, फर्स्ट स्टेज पे nothing is happening, right? Similarly, when the bottle moved to third stage, both the stage 1 and 2 are ideal. So are you getting my point? What is happening over here? See, हम एक कंसिडर कर रहे हैं बॉटल पैकेजिंग के प्लांट को, और बॉटल पैकेजिंग के प्लांट्स पे 3 स्टेप में काम हो रहा है. पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम बॉटल को रख रहे हैं. दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बॉटल को फिल कर रहे हैं. और थर्ड स्टेप में हम बॉटल को सील कर रहे हैं. थर्ड स्टेज में हम उसको सील कर रहे हैं. तो जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड स्टेज पे आता है फिलिंग द वाटर, उस केस में फर्स्ट स्टेज मतलब that stage is empty, nothing is happening at that stage. And when it comes to third stage, means after filling the water into the bottle, at the third stage what is happening, sealing is happening. तो वो जो first 2 stage है that are ideal, वो 2 stage जो हैं वो दोनों ideal हैं. तो अब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि भैया फर्स्ट 2 स्टेज आइडियल होती है जब थर्ड स्टेज पे जाती है, और जब वो सेकेंड स्टेज पे होता है तो फर्स्ट स्टेज आइडियल होती है. तो हम इसको अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग पाइपलाइनिंग ऑपरेशन, राइट? सो बट इन पाइपलाइन ऑपरेशन व्हाट इज वी आर डूइंग, व्हेन द बॉटल इज इन द स्टेज 2, another bottle can be loaded into stage 1. Similarly, when the bottle is in the stage 3, there can be a bottle each in the stage 1 and 2. So after each minute we get a new bottle at the end of the stage 3. Hence the average time taken to manufacture one bottle is, without pipelining, is 9 by 3 minutes, that is equals to 3 minutes. And when we are using the pipelining impact, then it is 5 by 3 minutes, that is 1.67 minutes. So the time is reduced. Are you getting my point, what I am trying to see? I have given you this example so that things get clear to you. भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार में एक बॉटल ली, 3 स्टेजेस ली. एक बार बॉटल को हम इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरी बार उसे वाटर से भर रहे हैं, थर्ड स्टेज में उसे सील कर रहे हैं. तो इस केस में क्या हो जाए, जब वो सेकेंड स्टेज पे आता है तो फर्स्ट स्टेज आइडल है, और थर्ड स्टेज पे आता है तो फर्स्ट 2 आइडल है. तो उसके लिए हम एक पाइपलाइनिंग ऑपरेशन फॉर्म करते हैं. उसमें क्या होता है, जब फर्स्ट स्टेज पे बॉटल इंसर्ट की, राइट, सेकेंड स्टेज पे जैसे ही वो आती है दैट इज़ फिलिंग द बॉटल, तो फर्स्ट स्टेज में हमने एक और बॉटल इंसर्ट कर दी. अब क्या हो रहा है, वो जो टाइम वेस्ट हो रहा था, फर्स्ट स्टेज आइडियल थी, वो पाइपलाइनिंग के केस से इस ऑपरेशन के थ्रू क्या हुआ, वो हमने यूज़ कर लिया. अब जैसे ही हमारी फर्स्ट बॉटल का वाटर फिलिंग ख़त्म हुआ, वो थर्ड स्टेज में आ गए सीलिंग में, और जो हमारी जो फर्स्ट बॉटल थी इंसर्ट हुई थी, सेकेंड बॉटल जो इंसर्ट की थी, अब उसको हमने डाल दिया सेकेंड में, दैट इज इंसर्शन ऑफ वाटर में, और फिर उसको थर्ड स्टेज में डाल दिया सीलिंग में. तो हम एक से ज़्यादा बॉटल फिल कर रहे हैं सेम टाइम में, साइमल्टेनियसली. तो इससे हमें एडवांटेज ये मिला, द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस इज़ कि हमारा जो स्टेजेस आइडल थी अब वो आइडल नहीं है, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारी बॉटल भर रहे हैं,
राइट. सिमिलरली पाइपलाइनिंग में क्या होता है, मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू enhance the speed and reduce the time. Got it? So this is clear to you. Without pipelining 3 minutes is taking, with pipelining 1.67 minutes is been taking. So you can say that the pipelining operation increases the efficiency of a system. अब ये बॉटल वाले एग्जाम्पल से आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा पाइपलाइनिंग का ऑपरेशंस, राइट. एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इट, इससे क्या हमें एडवांटेज मिला, that the pipeline operation actually enhances the speed of the system. किसी भी सिस्टम की स्पीड को that is been enhanced by the pipelining system. I hope the concept of pipelining is very clear to you, and still if you have any problem, please feel free to ask. Thanks for watching this video.